Hello students, in today's session we are going to conclude our chapter 1 partnership final account. So far we study what is partnership, how two partners or more partners come together as per the Partnership Act 1932 and they start a business. They carry on their activities and they maintain their final accounts. We have also seen the two types of account methods of account, the fixed capital and current capital, and almost all the questions we try to solve online using this computer screen. In today's session, I'm just concluding this chapter. I will explain you what the chapter says. Have a look. In this chapter 1, we study about the meaning and definition of partnership. We understood the Indian Partnership Act 1932 and the methods of capital. If you understood these three things, rest of the thing is practical that we covered. Almost 6 questions we have solved online using computer screen. So we know what is partnership. It is nothing but the relation among two or more partners as per the Partnership Act 1932 section 4. It defined it is a relationship between person who have agreed to share profit of a business or loss of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो कोई एक पार्टनर भी अगर एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस तो उस पार्टनरशिप की वो एक्टिविटी कंसिडर होती है. सो वी हैव सीन दिस थिंग्स, वी हैव सीन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैसे वो फॉर्म होता है, प्रिंसिपल एजेंट कौन होता है, जॉइंट ओनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डीड क्या होता है. सारी डीड में बातें लिखी रहती है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है. Thereafter we solve the problems, and today's session I will just explain you the adjustment of last 2 questions. Question number 9, government textbook, page number 61. So here again 2 partners are there. We have a trial balance, debit side and credit side. Wherever is date given, we have to calculate as per the July है तो July, August, September, October, November, December, January, February, March. So 9 months the goodwill will be, if there is calculation, so we have to consider this machinery for a period of 9 months only. अगर depreciation आता है तो 9/12 करना पड़ेगा. तो whenever date is given या ऐसा परसेंटेज दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में, तो इसके भी 2 इफेक्ट होते हैं जिसे कहते हैं हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट. तो यहाँ पर मशीनरी के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो मशीनरी का जो भी डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट में कहा गया है 40,000 के ऊपर, द पीरियड वी विल कंसीडर 9 मंथ्स, जुलाई 2018 टू March 31st March 2019. सो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का पीरियड यहाँ जाता है. उसके बाद है 8% डिबेंचर्स. तो 8% डिबेंचर्स के ऊपर भी हमको पेमेंट करना है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका 8%. 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100. तो जो भी फिगर आता है इसका, हैव अ लुक कितना फिगर आता है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100. तो ये 640 का जो फिगर आता है, तो ये हमारा परचेस कब है ये देखना है. फिर अगेन ये अक्टूबर में है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो अगेन इट विल बी डिवाइड बाय 6/12. इसका आधा हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100. तो ये होगा ईयर के लिए. अब इसको हाफ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाता है 320 रुपीज. तो ये जो कैलकुलेशन 320 के, इसके भी 2 इफेक्ट होंगे. तो रिमेंबर वन थिंग, whenever date is given regarding purchase of any asset, here is example of the machinery or furniture, तो आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ये पीरियड देखना पड़ेगा. अगेन हमने जो डिबेंचर है परचेस किए थे, तो ये परचेस किए हमने कौन सी डेट पर, तो हमको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. डिबेंचर है, इंटरेस्ट डिविडेंड जो मिलना है इस पे हमको ये मिलेगा. तो रिसीव होगा, ये इनकम है तो इसका इनकम है, तो एक चला जाएगा क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के. और दूसरा जब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको डिबेंचर, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड आइटम या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है, बैलेंस शीट के या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो एसेट साइड जब डिबेंचर हम
रिकॉर्ड करेंगे, सो वी हैव टू ऐड दिस 320 रुपीज इन दैट. So 8,000 plus 320, outer column 8,320 will be recorded. अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट इसमें दी गई है, have a look on the adjustment. Very first adjustment, partners are entitled to get a salary at a rate of rupees 6,000 per annum. पर annum कह दिया गया है, तो ये साल के लिए है. जो पार्टनर्स है दोनों भी, सन एंड मून, दे गेट एडिशनल सैलरी इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके एडिशन में 6,000 क्योंकि पार्टनर्स दोनों हैं यहाँ पर, दोनों को 6,000 हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को. पर अनम कहा, अगर पर मंथ कहता था तो हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 12 से. सो रिमेंबर, पर अनम और पर मंथ. सो हियर इट इज क्लियरली गिवन पर अनम, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को. डिप्रिसिएशन का हमको पता है कब परचेस किए. यहाँ पर जैसे कि ऊपर देखा था हमने, मशीनरी हमने मिडिल ऑफ द ईयर परचेस किया था, तो इस पे डिप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे, सो वी हैव टू कंसीडर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ ओनली. तो जो 40,000 है मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 12, और जो रेट आता है 10%, तो 40,000 का 10% हो जाएगा आपका 4,000. ये 4,000 आया मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 12, तो डिप्रिसिएशन वुड बी rupees 3,000 on machinery instead of 4,000. Why? Because that machinery is utilized only for a period of 9 months in the business. That's why we have to charge depreciation for a period of 9 months only. Next. Closing stock, third adjustment, interest on capital. It's a benefit of the business, but it is a loss of the business. The business is paying interest to the partners. As we know that the partners and partners investment are two different entities in the eye of law. तो बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है इन द आई ऑफ लॉ. जब हमने पार्टनरशिप का स्टडी किया था, थ्योरेटिकल पार्ट, तब हमने देखा था. तो अब बिजनेस से पे किया जा रहा है, तो बिजनेस का तो खर्चा है, तो विल बी रिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तो जब भी कोई एडजस्टमेंट आती है, सिंपलेस्ट थिंग है कि आपको दो इफेक्ट देना है. एक इफेक्ट जनरली जो जाता है, one effect will always recorded on debit side. Second effect will always recorded on credit side. एक इफेक्ट जब डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होगा. एक एसेट को जाएगा तो दूसरा लायबिलिटी को जाएगा. एक ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में आएगा तो दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा. तो एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट ही होना है, तो ये हमेशा है. या फिर एक जगह से माइनस होता है, तो माइनस हुआ, अगर डेबिट से माइनस हो रहा है तो मतलब इफेक्ट उसका क्रेडिट है, तो यहाँ क्रेडिट हुआ तो फिर यहाँ पर वो दूसरी साइड पर डेबिट आ जाएगा. ओके. क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको पता है, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन. वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 as advance given to worker. One of our employee working in the factory, we have make a payment and advance ₹1,000. तो एडवांस है तो इसको प्रीपेड है. प्रीपेड के लिए हमारे पास साइन है माइनस की, तो हम माइनस कर लेंगे वेजेस में से 1,000, और 1,000 माइनस करके दूसरा इफेक्ट इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे. देखिए अब यहाँ पर अगर इस इफेक्ट को मैंने जैसा आपको कहा, यहाँ पर एक डेबिट जाता है तो दूसरा क्रेडिट जाता है. तो बैलेंस शीट का अब थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन की और आपको जरूरत है. तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इसका है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा. हम वेजेस रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के. कहाँ करते हैं वेजेस को? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट करते हैं. अब यहां से माइनस हो रहा है क्योंकि हमने प्रीपेड किया है. और जो बैलेंस शीट आपका है, तो बैलेंस शीट जो है आपका, बैलेंस शीट असेट साइड है, वो डेबिट ग्रुप होता है. इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहा जाता है, डेबिट और क्रेडिट नहीं कहा जाता. बैलेंस शीट
लाइबिलिटी साइड एक क्रेडिट ग्रुप आता है, कहलाता है। तो यहां पर जब ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड लिखा जा रहा है, लेकिन इसकी साइन कौन सी है, इसकी साइन है माइनस। अब ये चला जाएगा, डेबिट ग्रुप है तो डेबिट तो हो रहा है, यहाँ पर कहाँ लिखा जा रहा है, हम वेजेस कहाँ लिखेंगे, अब प्रीपेड वेजेस लिखेंगे, हम प्रीपेड वेजेस कहाँ लिख रहे हैं हम इसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना कहा गया है वेजेस को, 1000, तो यहाँ 1000 लिखा। तो आप कहेंगे ये भी डेबिट हो रहा है सर, और ये भी डेबिट हो रहा है। तो ये डेबिट हो रहा है, लेकिन इसका साइन देखिए आपने माइनस किया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को, तो यहाँ का माइनस मतलब ये इसका क्रेडिट इफेक्ट है। माइनस मीन्स इफेक्ट जो है क्रेडिट है, वाई माइनस साइन। तो यहाँ माइनस होने की वजह से ये क्रेडिट इफेक्ट होगा, तो यहाँ क्रेडिट हो तो अब बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट ग्रुप एसेट साइड है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम वेजेस प्रीपेड लिखते हैं। तो इस तरह से अगर जहां डाउट आया कि कौन सी चीज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, द सिंपलेस्ट वे इज दैट one effect will be recorded on the debit side, another effect will be recorded on the credit side, because it's a principle of double entry accounting system. Each debit must have an equal corresponding credit. तो जब डेबिट आया है तो यहां पर क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। नॉट पेड है तो पे करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट, हमको पे करना है, सो इट बिकम द लायबिलिटी, सो वी हैव टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो एक लायबिलिटी साइड आगा। अब देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरेस्ट, हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 800, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ पर है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है। अब ये होगा क्रेडिट, तो अब जाएगा दूसरा डेबिट, तो ये P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट, ये 800। तो देखिए इस तरह से ये एक बार डेबिट में आ गया, इसके P&L अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर ये क्रेडिट ग्रुप है तो यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ 800, यहाँ 800। सो ईच डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो आप ये लॉजिक रखें, कहीं पर कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जहां आपको समझ नहीं आ रहा हो कि एक इफेक्ट तो समझ आ रहा है कि डेबिट होगा, तो दूसरा कहाँ जाएगा, तो दूसरा ऑब्वियसली इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इस तरह से वो क्रेडिट ग्रुप हो जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड जाएगा। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। तो यहाँ पर ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए ग्रुप लिखा हूँ, यहाँ पर डेबिट ग्रुप लिखा हूँ इसको, टू अंडरस्टैंड इट, इट्स अ डेबिट ग्रुप, नॉट अ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो एक इस तरह से डेबिट में आ गया इंटरेस्ट, और एक तरह से क्रेडिट में। टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 38,113 रुपीज। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेट प्रॉफिट दे दिया मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो देखिए जब नेट प्रॉफिट बिजनेस में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दैट केस वी नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपका पर्पस होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का, दैट वी स्टडीड। ट्रेडिंग अकाउंट का होता है ग्रॉस रिजल्ट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस होता है टू नो द नेट रिजल्ट। तो नेट रिजल्ट आपको दे दिया है, तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पर मोस्टली आइटम आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड मिलेंगे, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये ट्रेडिंग अकाउंट से एक रिलेटेड था, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो वी डू नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जस्ट वी रिक्वायर टू प्रिपेयर, देखिए लास्ट में क्वेश्चन पढ़ लेना आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। करंट कह रहा है, तो करंट अकाउंट कब बनता है, जब मेथड फिक्स रहा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज द प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ इन द एडजस्टमेंट। So it is we will conclude here our chapter 1. I try to explain each important part of the chapter. Now it's your responsibility to practice at home, solve all this 10 exercise problem. 6, 7 I explain you, and 2, 3 you have to practice, so you will be able to score in the final examination 12 out of 12. So I will stop here.